نہیں مجھے خوشی نہیں ہے، مجھے افسوس ہے کہ ایک جنگ جو سوشل میڈیا پر چھڑی تھی، الزامات کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، ایک دم سے کیوں خاموشی کہ ملزم عثمان کا جو بیٹا دنیا میں آیا ہے، اس کے بیٹے کو عثمان کے گھر والوں نے لیگل طریقے سے لینے کے لیے بھی کاروائی شروع کر دی۔ خاموش ہونے کے بعد اس نے کہا کہ جی اللہ دی مرضی، یہ عثمان کے ورڈ ہے۔ انہی الزامات کا جب جواب آتا ہے اور مزید الزامات لگائے جاتے ہیں کچھ اور لوگوں پر، تو پھر ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ملزم عثمان کی اہلیہ جو ہماری بہن ہے ہنا، اس کو اللہ نے بیٹے کی خوشی سے نوازا ہے۔ اس کیس میں جو سب سے مطمئن چہرہ تھا نا، وہ ملزم حمزہ کا تھا۔ مطمئن اس لیے کہ وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو گیا ہے۔ عثمان کے لیے انتہائی افسوس کا ٹائم تھا، دکھ کی گھڑی تھی۔ اس میں بالکل میں کہنا نہیں چاہ رہا، یہ ثابت ہو چکا ہے، اس میں بہت سارے ایسے لوگ سامنے آئے ہیں اور ان کی زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکل آئے ہیں کہ وہ اپنے الفاظوں میں ہی پھنس چکے ہیں۔ میرے پاس مقتولہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی موجود ہے، اٹیسٹڈ، ویریفائڈ۔ اے ڈی ملک بغیر پروف کے کوئی بات نہیں کرتا، ثبوتوں کے ساتھ بات کریں گے، آپ کو دکھائیں گے، پڑھ کر دکھائیں گے۔ ویورز، ویڈیو پر آنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زبیر اوان۔ خاص قتل کیس ہے، اس سے ریلیونٹ آپ کو لمحہ با لمحہ جو بھی اپڈیٹ آتی ہے اس سے آگاہ کرتے رہے ہیں۔ اس کیس میں کیا نئی اپڈیٹ ہمارے پاس آئی ہے؟ انیلا ابھی تک انٹرم پر ہے، وہ پولیس کی حراست میں نہیں ہے۔ اچھا، جو اس میں دو ملزم ہیں، ایک عثمان اور دوسرا حمزہ، ان کو جب پولیس نے گرفتار کیا تھا، ان کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ جب لیا اور اس کے بعد ان کی تفتیش کی، ان دونوں ملزمان کا جو جوڈیشل ہونے کے بعد پہلا جو ان کا جوڈیشل ریمانڈ جیل سے ان کو پہلی بار جو عدالت میں لایا گیا تو وہ آج یعنی کہ 4 تاریخ کو۔ اب شاید ہماری ویڈیو یہ 5 کو پبلک ہو، اور زبیر ہفتے کو عثمان اور حمزہ کو پہلی بار عدالت میں لایا گیا۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عدالت میں آ کر ان دونوں ملزمان کے تاثرات کیا تھے، ان کے چہرے کی جو ہوائیاں تھی وہ کس طرح کی تھی، ان کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے یا پھر یہ نارمل جو جیسے کسی جو کرمنل شخص ہوتا ہے یا جو جس کا کوئی پلان ہوتا ہے اور اپنی پلاننگ میں وہ کامیاب ہوتا ہے، تو اس کو اتنا بڑا کیس ہے، پریشان تو وہ ہوں گے۔ لیکن پریشان اس میں آپ کو یہ بتا دوں زبیر، ہو سکتا ہے کہ میری آنکھوں کا یہ دھوکہ ہو یا پھر مجھے سمجھنے میں کچھ ایسا نہ لگا ہو، لیکن اس کیس میں جو سب سے مطمئن چہرہ تھا نا، وہ ملزم حمزہ کا تھا۔ مطمئن، بالکل ریلیکس، جسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ نے خود دیکھا تھا؟ بھائی میں آپ کو بتایا ہوں کہ میں فیلڈ میں جا کر جگہ جگہ جا کر میں ایسی چیزیں کلیکٹ کرتا ہوں، اور بخشی خانے میں نے جب ان دونوں ملزمان کو دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے، تو یقین کرے کہ میں حیران تھا کہ جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے اپنی سوتیلی والدہ کو قتل کیا، اور قتل تو کسی درخت کے اوپر 302 لکھ دیا جائے نا تو وہ درخت آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ خشک ہو جاتا ہے اور ایک دن وہ گر جاتا ہے۔ یہ تو بات ماننے میں نہیں آ رہی کہ ایک شخص جس کے اوپر اتنا بڑا الزام ہے اور آپ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ مطمئن تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مطمئن اس لیے کہ وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کا جو مقصد تھا اس نے وہ مقصد حاصل کر لیا۔ اس نے جو اس کا ٹارگٹ تھا کہ میں نے مقتولہ کو قتل کرنا ہے، اور اس نے قتل کر دیا۔ اچھا، اور اس کے چہرے سے ایک مجھے لگا ہی نہیں، یہ محسوس ہی نہیں میں کر سکا کہ یار اس پر یہ الزام یہ بے گناہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف جو ملزم عثمان ہے وہ تھوڑا سا پریشانی کے عالم میں تھا۔ اسے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جمعرات کو جب اس کے بھائی یا اس کی فیملی اس کو ملنے کے لیے گئے تھے، تب انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کے ہاں اللہ نے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، بیٹے کی جو ملزم عثمان ہے۔ اچھا، ملزم عثمان کی اہلیہ جو ہماری بہن ہے ہنا، اس کو اللہ نے بیٹے کی خوشی سے نوازا ہے۔ اب جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے، اور وہ ظاہری بات ہے نا، اتنی بڑی خوشی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازتا ہے،
बड़े इंसान ने ना ख्वाब सोचे होते हैं, मुझे अल्लाह ताला खुशी देगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये उस्मान के लिए इंतहाई अफसोस का टाइम था, दुख की घड़ी थी जब उसको पता चला होगा कि अल्लाह ने उसको बेटा दिया और वो उस वक्त कहाँ पे है। तो वो बेटे की जब बात उसने सुनी तो वो थोड़ा सा खामोश होने के बाद उसने कहा कि जी अल्लाह दी मर्जी, ये उस्मान के वर्ड है। अब उस्मान से मैंने दोबारा पूछा कि उस्मान मुझे ये बताएं कि आपका अनीला के साथ कब से रिलेशन था। यार सोचे उस बंदे के क्या अल्फाज होंगे। ये दोनों मुलजिम उस वक्त एक ही हथकड़ी लगी हुई थी, तो एक ही जगह पर खड़े थे और दोनों में से किसी ने भी ना कहा कि मेरा अनीला के साथ ताल्लुक था या इसका था। दोनों नहीं माने, दोनों नहीं माने भी। ये वो हकीकत मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखी है और अपनी आंखों से देखकर मैंने जो अपने कानों से सुना और फिर मैं आपको आप सब लोगों को बता रहा हूं कि आज ये माहौल था अदालत में। अच्छा, आपने अभी कहा है कि उस्मान की हाँ बेटा पैदा हुआ, दूसरी तरफ अनीला की भी डिलीवरी होने वाली थी। बिल्कुल होने वाली नहीं बल्कि हो चुकी है। अब आप कहते हैं जी उसकी हाँ बेटी पैदा हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उधर भी बेटा पैदा हुआ है। तो ये बात क्लियर कर दें कि भाईजान किस दिन या किस तारीख को अनीला की डिलीवरी हुई है, बेटी हुई या फिर बेटा पैदा हुआ है। जुबैर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी ऐसी खबर तब तक नहीं देता जब तक उसके मेरे पास मुकम्मल ठोस सबूत ना हो। अनीला जिस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुई, किस हॉस्पिटल में एडमिट हुई, कौन लेके गया, सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि किसी के साथ कमिटमेंट होती है कि आप ये चीजें पब्लिक नहीं करेंगे। अच्छा, इसलिए मैं उनकी शिनाख्त को मद्देनजर रखते हुए या ना जाहिर करते या अपनी साहबती जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं इस चीज पर अगर आप कहेंगे कि जी कौन लेके गया था, कहां पे हुई, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जवाब दूंगा। दूसरी बात ये कि अनीला के यहाँ बेटी हुई, अनीला का बड़ा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन से उसकी बेटी हुई और फिर ये जो बेटी की पैदाइश है ये 2 तारीख को हुई थी। अच्छा, और बेटी की खबर मैंने सबसे पहले दी और मैंने ऑपरेशन के साथ जो जिस तरह मामला हुआ, जिस तरह मुझे बताया गया, मैंने उसी तरह एक्सप्लेन की। अब एक तरफ बेटे की पैदाइश हुई है और एक तरफ बेटी की पैदाइश हुई है। मैं थोड़ी सी मजीद तशरीह कर देता हूं कि मुल्जिम उस्मान का जो बेटा दुनिया में आया है, उसके बेटे को उस्मान के घर वालों ने लीगल तरीके से लेने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी है। अच्छा, एक ऐसा मुआहदा मेरे सामने मुझ तक मौसूल हुआ है और मैं चाहता हूं कि उस मुआहदे को आप सब लोगों तक पहुंचाया जाए। किस किस्म का मुआहदा, उसमें क्या ऐसी चीज तहरीर की गई है जिसे पता चले कि ये इनके दरमियान मुआहदा हुआ है दोनों फैमिली से? बिल्कुल जुबैर, आप सही कह रहे हैं, बड़ा जबरदस्त आपने सवाल किया। ये मुआहदा देखें, जिस 2 खानदान में इतनी बड़ी फूट पड़ चुकी है, कत्ल तक हो चुका है, कत्ल के इल्जामात लग चुके हैं, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तो वहां पर एक एक कदम दोनों तरफ से उठाने से पहले सोचेंगे कि हम इसको किस तरह से उठाएं, कौन सा कदम कहां पर रखें। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। वो मुआहदा क्या है, मुआहदे में तहरीर क्या है, पार्टी कौन बना हुआ है, फर्स्ट पार्टी कौन है, सेकंड कौन है, किसने ये तहरीर किया, उसमें क्या क्या डिमांड्स रखी गई हैं, वो सारा कुछ मेरे पास मौजूद है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम उस मुआहदे के मुतालिक एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें वो पूरे का पूरा मुआहदा जो है आप सबके सामने रखेंगे, ताकि हमारे देखने वाले भी उस मुआहदे को अपनी आंखों के सामने देखकर उसको पढ़ें। अच्छा, कुछ हमारे दोस्त हैं वो बता रहे थे कि अब उन्हें इंटरव्यू करने की इजाजत नहीं मिल रही या फिर इंटरव्यू नहीं दिया जा रहा। इस हवाला से क्या मालूमात है आपके पास? आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा के सवालात का जवाब दे रहे हैं, आपको किस चीज की खुशी है? नहीं, मुझे खुशी नहीं है, मुझे अफसोस है कि एक जंग जो सोशल मीडिया पर छिड़ी थी, इल्जामात का जो सिलसिला शुरू हुआ था, एकदम से क्यों खामोशी हो, एकदम से क्यों दरवाजे बंद कर दिए? हमारे नहीं, हम तो लोगों को बता रहे हैं, हम तो केस की हर जो अपडेट होगी वो बताएंगे। अब जो मुद्दई मुकदमा की तरफ से इंटरव्यू देने के लिए साफ इनकार कर दिया गया, मेरे कुछ सहाफी दोस्तों ने मुझसे राब्ता किया कि हम आपका मौक़िफ़ लेना चाहते हैं, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं,
आपने अनीला का इंटरव्यू किया, आपने नुमान का इंटरव्यू किया, सबकी तकरीबन सबके दोनों तरफ के मैंने इंटरव्यूज किए, तो आप हमें भी टाइम दें। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं कि उनकी तरफ, आप जाहिर बात है ना, शुरू दिन से आप काम कर रहे हैं उनके साथ, तो आप उनके साथ राब्ता करें। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि हमें, जब हम नुमान की तरफ गए तो पहले तो जिस वक्त मर्जी जाते थे तो हमें इंटरव्यू दिया जाता था, अब हमें घर के अंदर दाखिल होने से भी उन्होंने मना कर दिया। क्या वजह क्या सामने आई है? जो उसकी जुबैर जो वजह है ना, जहां तक मैं समझता हूं, देखिए पहले था इनकी तरफ का मौक़िफ़, और इनके मौक़िफ़ को हर बंदा सच तस्लीम समझ रहा था कि ये जो कुछ कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। फिर जब मेरी एंट्री होती है, आपकी एंट्री होती है, मेरे दोस्त राणा साहब की एंट्री होती है, तो फिर माहौल बिल्कुल तब्दील हो जाता है, केस ओपन हो जाता है। केस में वो जिन पर इल्जाम लगाया गया था वो सामने आ जाते हैं। तो जो इल्जाम इनकी तरफ से लगाए जा रहे थे, उन्हीं इल्जामात का जब जवाब आता है और मजीद इल्जामात लगाए जाते हैं कुछ और लोगों पर, तो फिर डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर एक सच को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ते हैं, लेकिन फिर भी सच सामने आ जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर आसान अल्फाज में मैं तशरीह करूं कि कुछ सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब मुद्दई पार्टी के पास नहीं है, जिसकी वजह से इंटरव्यूज नहीं दिए जा रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं? और जुबैर, उसमें बिल्कुल मैं कहना नहीं चाह रहा, ये साबित हो चुका है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए हैं और उनकी जुबान से ऐसे ऐसे अल्फाज निकल आए हैं कि वो अपने अल्फाजों में ही फंस चुके हैं कि हमने क्या बोलना था, हमने क्या बोल दिया, हम तब तक छुपे हुए थे, अचानक से ओपन क्यों हो गए हैं। इसलिए अब तफ्तीश का जो दायरा कार है ना, वो मजीद वसी हो गया है। अब रोजाना एक नया चेहरा जो है वो थाने जाता है, उससे पूछ-गूछ हो रही है, क्या वजह है? इसीलिए जब दोनों तरफ का मौक़िफ़ सामने आ गया, मालूम जो इंफॉर्मेशन थी वो मजीद बढ़ गई कि ये लोग ये कह रहे हैं, आगे से ये बात आ रही है। अब जुबैर, मैं देखे जो बंदा एक इन्वेस्टिगेशन तौर पर काम करता है ना, तो उसको बहुत सारी चीजें हाथ लगती हैं। अब मेरे पास एक ऐसी चीज भी हाथ, हम उस पर भी आपको जब बताएंगे उस डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक, तो सोचें कि ये लोग सर पकड़कर बैठ जाएंगे। उस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। वो बिल्कुल, वो देखें, उस पे हम अलग बनाएंगे। जो मुआहदा है हम उस पे अलग वीडियो बनाएंगे। मेरे पास मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मौजूद है, अटेस्टेड, वेरीफाइड। मेरे पास मकतूला का डेथ सर्टिफिकेट अटेस्टेड, वेरीफाइड, वो भी मौजूद है, हम उस पर भी बात करेंगे। और जो बातें आप कह रहे हैं, ये आपने साथ में चलानी है ताकि लोगों को यकीन आए। ज़बानी कलामी ये आप अगर हंस के जवाब देंगे तो मैं भी शायद ना मानूं आपकी बात। जुबैर, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना, और मुझे उम्मीद है कि आपको, अकेले को नहीं, मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन को भी आप अगली वीडियो में एक ही चीज दिखाएं। बिल्कुल दिखाएंगे, ये मेरा वादा है, उन्हें यकीन, ये उन्हें पता भी चले। जुबैर, मैं ऑन रिकॉर्ड ये मैं वादा कर रहा हूं, और मैं, जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, उन्हें यकीन है एडी मलिक बगैर प्रूफ के कोई बात नहीं करता। सबूतों के साथ बात करेंगे, आपको दिखाएंगे, पढ़कर दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे, आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, लोग भी उसको पढ़ सके। तो ये मेरा वादा है। जो एक डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं ना, वो बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स है, और यकीन करें कि वो सारे का सारा इस केस का जो है ना, वो कट्ठा चिट्ठा खोल के रख देगा। नाज़रीन, जिस तरीके से इन्होंने बताया है ना कि बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है, अब तो मतलब मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं अभी देख लूं, लेकिन टाइम आपको चूंकि पता है कि वीडियो के लिए बड़ा शॉर्ट होता है, तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। केस में जो भी नई डेवलपमेंट हो रही है, नई चीजें आ रही हैं, वो हमने आप लोगों के सामने रख देनी है, और जो भी बात होगी वो प्रूफ के साथ होगी। अपनी तरफ से हम कोई भी चीज नहीं फेंकेंगे। जाहिर बात है कि जो भी हम बोल रहे हैं या फिर आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो क्या बड़ी जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं, तो एवं तुक्के नहीं ना हमने लगाए हैं ना हम लगाएंगे। और वैसे भी एडी साहब पे तो ये भी इल्जाम लग रहा है कि इन्होंने पैसे उठाए हुए हैं एक पार्टी से, इसलिए जो है ना ये बीच में हैंगी बैंगी कर रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम दो साइडों का मौक़िफ़ आपके सामने रखा है, तीसरी साइड की जो भी इंफॉर्मेशन अपने सोर्सेज के जरिए हमें मिलती है वो भी हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो आपने अगली वीडियो का इंतजार करना है, उसमें बड़ी सारी इंफॉर्मेशन भी है, बड़ी सारी चीजें हैं जो कि हमने आपके सामने रखनी है, उसके बाद फैसला आपने खुद करना है। तो चाहते सिर्फ हम ये हैं कि इस केस में इंसाफ हो, नुमान को इंसाफ मिलना चाहिए जिसकी वालदा का
قتل ہوا ہے, جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور جو اصل قاتل ہے اسے سزا ملنی چاہیے. اللہ پاک آپ کے بارے ہم سب کے حال پہ رحم